गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुभ सवार बाल मित्रों, केम छो बधा मजामा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं गुजराती और गुजराती में हम लोगों ने क से ज्ञ तक कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम हमारी बुक का जो लास्ट पेज है वो पेज कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। सो નીચેની ટ્રેનમાં ચિત્ર ઓળખી તેનો પહેલો મૂળાક્ષર લખો। હવે જુઓ, આને આપણે ચિત્ર ઓળખી પહેલો મૂળાક્ષર તો કહી શકીએ, પણ એક્ઝામમાં એવું બી પૂછી શકાય કે ખૂટતો મૂળાક્ષર પૂરો, બરાબર। લાઈક પહેલો ક આપ્યો હોય, પછી ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ, જેવી રીતે અહીંયા આપ્યું છે કે પહેલો ચિત્ર છે એમાં કશું જ નથી લખ્યું, પછી બીજા ચિત્રમાં છે, ત્રીજા ચિત્રમાં કાંઈ જ નથી, ચોથા ચિત્રમાં છે, પાંચમા ચિત્રમાં કાંઈ જ નથી, રાઈટ। સો આવી રીતના ચિત્ર આપ્યા વગર ખાલી જગ્યા સાથે તમને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે કે ખૂટતો મૂળાક્ષર પૂરો। લાઈક ક લખ્યો છે પછી ખાલી જગ્યા, ગ લખ્યો છે ખાલી જગ્યા, એટલે કોઈ પણ પેટર્નમાં પૂછાઈ શકે છે, રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ। તો તમારે બધાએ કક્કો એકદમ પરફેક્ટ આવડવો જોઈએ, સ્વર પણ એકદમ પરફેક્ટ આવડવા જોઈએ, રાઈટ। સ્વર અને વ્યંજન પરફેક્ટ આવડવા જોઈએ, અને 1 થી 10 વિથ સ્પેલિંગ તમારે પરફેક્ટ આવડતા હોવા જોઈએ, બિકોઝ કે તમે લોકો એને સારી રીતના લર્ન કરશો તો એક્ઝામમાં લખી શકો, બરાબર। સો you must have to prepare this swar and vyanjan properly, because you have to write the answer in the filling the blanks with missing letters, right? In missing letters, so you have I can ask complete this and complete this filling the blanks with the missing letters, right? जैसे हमारे इंग्लिश में आता है कि अल्फ़ाबेट जो है उसको मिसिंग अल्फ़ाबेट को आपको लिख के कंप्लीट करना है, वैसे ही मिसिंग व्यंजन और स्वर को लिख के आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, सॉरी ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, राइट। सो चलो आज हम देखते हैं क को। अब देखते हैं कि कैसे हम लिखेंगे। सो यू हैव टू ओपन योर बुक एंड राइट विथ मी। फर्स्ट शो मी हाउ आई राइट। ओके, सो पहलू पिक्चर कोनु छे? કૂતરાભાઈનું। સો ક, કુકુનો ક, રાઈટ। અરે ક, પછી છે ખ ખિસકોલીનો ખ, પછી થર્ડ વન ગ ગાયનો ગ, ફોર્થ વન ઘ ઘરનો ઘ, એન્ડ લાસ્ટ વન ચ ચકલીનો ચ, ચકલીનો ચ। ઓકે, નાઉ ફર્સ્ટ લાઈન ઇઝ કમ્પ્લીટ। ક પછી ખ આપેલો છે, ગ ઘ ને ચ, બરાબર। તો આવી રીતના ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ પૂછાશે અને તમારે એની અંદર આન્સર લખવાનો છે। ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, નાઉ નેક્સ્ટ। હવે જુઓ, અહીંયા છે છ છછુંદરનો છ, રાઈટ। શું છે? છ છછુંદરનો છ। તો અહીંયા આપણે લખવાનું છે છ, પછી જ જમરૂકનો છે, પછી લખીશું ઝ ઝીબ્રાનો ઝ, ટામેટાનો છે, ઠળિયાનો ઠ, ઠળિયાનો ઠ। પછી શું લખ્યું છે બાળ મિત્રો? ચેક કરો તો।
પછી છે ડ ડમરૂનો ડ, બરાબર. પછી છે ડ ડમરૂનો ડ, રાઈટ. ડ ડમરૂનો ડ છે ને, ડ ડમરૂનો ડ. સો માય લવલી સ્ટુડન્ટ્સ, ક ખ ગ ઘ ચ, છ થી છછુંદર, જ થી જમરૂખ, ઝ થી ઝીબ્રા, ટ થી ટમાટર, ઠ થી ઠળિયો અને ડ થી डमरू, बराबर. यू कैन सी इजीली. अब ब्लैंक्स पे भी लिख सकते हैं, सर्कल भी हो सकता है. પછી ઢ થી ઢોલ, બરાબર. ઢ થી ઢોલ. અણ ફણસનો અણ, રાઈટ. એક મિનિટ. અહીંયા તબલાનો ત, થડનો થ, પછી શું આવે? દ, દ થી ચિત્ર ક્લિયર દેખાતું નથી. 10 એનું ચિત્ર છે. દ થી દૂરબીન, દ થી દૂરબીન. પછી ધનનો ધ, બરાબર. તો જુઓ, ડ અણ ત થ દ ને ધ, બરાબર. હવે આપણે નીચેની ખાલી જગ્યા જોઈએ. નયનનો ન, પગનો પ, ફળનો ફ, બ કોણ છે? બળદનો બ, ભમરાનો ભ. પછી શું આવે? મ, ફ બ ભ મ. મ થી શું બનાવ્યું છે? મગર. ઘરની બહાર નાનકડો મગર બનાવ્યો છે, તો મગરનો મ, બરાબર. તો આપણે જોયા છ, જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ અણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ મ. હવે આપણે જોઈશું આગળ. ય, યાકનો ય. પછી રથનો ર, લસણનો લ, વટાણાનો વ. પછી શામૃગનો શ, ષટકોણનો શ, બરાબર. ય, ર, લ, વ, श, बराबर. और ये श. अब यहाँ पे देखेंगे श के बाद क्या आता है? सांपनो स, बराबर. हळनो ह, અળનળનો અળ, ક્ષત્રિયનો ક્ષ, જ્ઞાનનો જ્ઞ, બરાબર. અને લાસ્ટમાં આવશે ત્ર. છેલ્લો કયો આવશે? ત્ર. અહીંયા જેવું મેં તમને શીખવાડ્યું તો ઋષિ બાવા જેવો એ ત્ર, બરાબર. તો આપણે આખો કપકો કમ્પ્લીટ કર્યો ક થી જ્ઞ સુધી. ક ખ ગ ઘ ચ છ જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ હણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ ય ર લ વ શ શ સ હ ળ ક્ષ જ્ઞ ત્ર, બરાબર.
તો આ રીતના આપણે આખો કક્કો કમ્પ્લીટ કર્યો. હવે ચલો બાળ મિત્રો, આજે હું તમને એક નવી એક્સરસાઇઝ શીખવાડું છું. બરાબર, તમારે તમારી બુકમાં ટોપ ઓફ ધ પેજ આજની ડેટ લખવાની છે અને આજની ડેટ લખ્યા પછી આખો કક્કો કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. બરાબર, અને આજે હું બીજી એક એક્સરસાઇઝ શીખવાડું એ પહેલાં તમને એક ઉખાણું બતાવી દઉં. બરાબર, અને ઉખાણું છે, કાળા વાદળ ચડે આકાશ, વરસાવે પાણીની રેલ, સૌને એ તો ભીંજવી દે, જોના ઓળે છાત્રી. બોલો ભાઈ, હું કોણ? વરસાદ. કાળા વાદળ ચડે આકાશ, વરસાવે પાણીની રેલ. બરાબર, કાળા વાદળ ચડે આકાશ, વરસાવે પાણીની રેલ, સૌને એ તો ભીંજવી દે, જોના ઓળે છાત્રી. બરાબર, બોલો भाई, હું कौन? वरसाद. सो ये हमारा पजल्स था जो हमने आगे 2 पजल्स लिए, ये तीसरा पजल्स है ना. अब हम देखेंगे मेक अ लेटर, सॉरी, फॉर्म अ वर्ड यूजिंग द लेटर गिवन इन द सर्कल. आपको क्या करना है? एक वर्ड बनाना है, राइट. और उसको गुजराती में कहते हैं तीरनी दिशा में शब्द बनाओ. बराबर. अब देखिए, ये 1 नंबर है, हमने यहाँ पे सर्कल में लिया हुआ है क. सर्कल में हमने लिया हुआ है क, राइट. अब हम क्या करने वाले हैं? क से सारे शब्द बनाएंगे, क्योंकि क से लेके ये एरो दिया है न क, अड़ श और मड़, तो यहाँ पे आपको ऐसे ब्लैंक्स दी गई होगी, राइट. ऐसे छोटी छोटी ब्लैंक्स दी गई होगी जिसके अंदर आपको आंसर क लिखना है, राइट. तो ऐसे 2 वर्ड पीछे वाले दिए हैं, न क, अड़ श मड़, तो आपको क्या लिखना है? क को न के साथ, न और क के साथ मैच करके क न क पूरा वर्ड बनाना है. फिर क को अड़ और श के साथ मैच करके पूरा वर्ड बनाना है, क अड़ श. देन क को म और अड़ के साथ मिक्स करके क मड़, ऐसा पूरा वर्ड बनाना है. समझ गए बच्चों आप? अब देखते हैं हम दूसरे. दिस इज कनक, कलश, कमल, राइट. अब देखिए, यहाँ पे मैंने दूसरे कुछ और एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आप इजीली बना सकते हैं, है ना. देखिए, ये मैंने सर्कल में ज बनाया है, उसके बाजू में लिखा है ज मण, तो ये वर्ड बन गया ज मण. अब मैंने वर्ड लिया है दूसरा ग और त, तो यहाँ पे बन गया ज ग त, राइट. फिर मैंने तीसरा वर्ड लिया है अड़, तो जड़. हमने सारे सिंपल वर्ड्स लिए हैं, राइट. हमने क्या क्या किया है? सारे सिंपल वर्ड लिए हैं, और सिंपल वर्ड से ही हम सारे सॉरी सिंपल लेटर्स लिए और सारे सिंपल वर्ड हम बना रहे हैं. फाइन. तो पहला बन गया जमण, सेकंड बन गया जगत, एंड थर्ड बन गया जड़, राइट. यू कैन सी कितने इजीली आप बना सकते हैं. इसको सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि ज को म और अड़ के साथ मैच करना है, फिर ज को ग और त के साथ मैच करना है, फिर ज को अड़ के साथ मैच करना है. इस तरह से हम डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं. फाइन स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे बनाएंगे, देखते हैं, राइट. सो दिस इज another word, b, right. This is you can see the
word in the circle, it is b. You can see the b, right? अब ब देख सकते हैं. अब यहाँ पे लिखा हुआ है र एंड फ, ट एंड न, त एंड क. तो आपको क्या करना है, ब को र के और फ के साथ मैच करना है. तो क्या बन जाएगा, बर्फ. क्या बन जाएगा, बर्फ. फिर ट और न के साथ मैच करना है, बन जाएगा बटन. और त और क के साथ मैच करके बन जाएगा बतख. राइट स्टूडेंट्स. सो आपको इस तरह से मैच करके बनाने हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट क्या बन गया, बर्फ, बटन और बतख. तो ये तो हम इजीली सिंपल वर्ड सीखे हुए हैं ना, तो इजीली हम बना सकते हैं. इस तरह से कोई भी वर्ड्स को पूछ के सिंपल वर्ड्स बना सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, ठीक है, ख. हमने ख को यूज किया. एक सेकेंड. सो ख से लेके भी हम वर्ड बना सकते. देखिए सर्कल में यहाँ बना दिया है ख, और यहाँ पे दिया है ला, ग एंड म एंड अण. राइट. सो ख ल बन गया खल, ख ग बन गया खग, और ख और मण बन गया खमण. राइट. 3 वर्ड्स बन गए हमारे, है ना, खल, खग, खमण. तो वो वर्ड कितने वैसे हमें नहीं पता चलता कि इस तरह से वर्ड बनते हैं, बट उसको दोनों को मैच करेंगे तो वो वर्ड बन जाएंगे, खल, खग, खमण, इस तरह से. फाइन स्टूडेंट्स. अब हम देखेंगे न, है ना. अब हम देखेंगे न. सर्कल में बनाया है न. तो न अड़. राइट. हम बनाएंगे न को अड़ के साथ मैच करके बन गया नड़. न को ख के साथ मैच किया तो बन गया नख, और न को म के साथ मैच किया तो बन गया नम. सो नड़, नख, नम. राइट. नड़, नख, नम. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिया है बच्चों, फ. सर्कल में लिया है फ. अब फ को अण के साथ मैच किया तो बन गया अण, और स के साथ तो बन गया फणस. फिर फ को अड़ के साथ मैच किया तो बन गया फड़, और फ को र के साथ मैच किया तो बन गया फर. राइट. तो कितना इजी है, कितना इजी है ना, इस तरह से वर्ड बनाना. देखो बहुत ही अच्छे से और इजीली हम ये बना सकते हैं. फाइन स्टूडेंट्स. सो आपको भी इस तरह से बनाने हैं, और ये सारे जो वर्ड्स है आपको आपकी होमवर्क बुक में भी लिखने हैं. ओके. ये बना के आपको आपकी होमवर्क बुक में भी लिखने हैं. फाइन स्टूडेंट्स. सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन एंजॉय योर डे. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.